मेरे पापा को ना मैंने हमेशा से सुबह टाई पहनते हुए जाते देखता था, तो हमेशा मन में था कि यार टाई पहननी है, जॉब करनी है। बस ये कि पापा की तरह दिखना है, वो जॉब टाई पहन के जाते हैं, क्योंकि पापा के सारे जो भाई हैं अभी भी गांव में रहते थे। तो मैं उनको धोती कुर्ता ये सब में देखता था और मेरे पापा मुझे उन सब में सबसे स्मार्ट दिखते थे। इस कंपनी को बनाने के लिए हमने अपना घर भी मॉर्गेज कर दिया था, पापा का सारा वीआरएस का फंड भी लगा दिया था, तो नहीं चल पाया। लाइबिलिटी में कंपनी थी, तो लाइबिलिटी में ही सेल कर दी 2011। 35 ईयर की एज में मैंने ये जाना कि अब मुझे राइट फिटमेंट, राइट पाथ क्या है। उसके पहले आई वाज नॉट श्योर, मतलब कभी प्लानिंग नहीं की थी अपने करियर की, बिजनेस की। यहाँ पे आके पाथ मिला कि अब इसके अंदर लग जाना है, इसको छोड़ना है। जब फर्स्ट ईयर में वो जाता है, पहले तो उसको ना अपने मनपसंद का कॉलेज ही नहीं मिलता, उसकी चॉइस की यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, उसकी चॉइस का कोर्स ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, ये सबको पता है। वो भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम के गए हुए हैं, सुंदर पिचई, इसी एजुकेशन सिस्टम के तो पार्ट है यार। तो हम कैसे अपने सिस्टम को खराब बोल सकते हैं? Hello, everyone, and welcome back to the Dharya Decodes podcast. In today's episode, we have an interesting entrepreneur joining us who has created a revolutionary platform in the education space, which is an industry extremely close to my heart, like I always say. We're going to be joined by Rohit Gupta, who is the co-founder and CEO at College Vidya, which is India's most trusted online education advisory platform. He was very recently also awarded as the Entrepreneur of the Year award by Aman Gupta, the founder of Boat, by DigiShark. And not just that, he's also a TEDx speaker and has won multiple awards and accolades and mentions across leading media publications of the country. He has been leading the operations at College Vidya for close to about 5.5 years now. And in this episode, we're going to be diving deep into Rohit's early career years, the kind of choices he made, his entrepreneurial journey, scaling up College Vidya to 500 plus employees today, how they've been able to build a revolution in the education industry, what College Vidya is doing, how they are solving for the major online education problem in the country, and a lot more. So without any further ado, let me welcome Rohit to the Dharya Decodes podcast. Thank you, Devya. Thank you for having me here. Thank you so much for joining us today, Rohit. Like I did mention in the introduction, that you guys are working in an industry and solving for a problem that I truly believe in, because it's so close to the kind of work that I do as well, right? It's bridging a gap between a learner who wants to upskill and obviously do something in their career trajectory, and also solving for the problem of choice, right? Because when we look at platforms like College Vidya, you're ultimately just easing out the process of choosing what may be the right fit or the best suited college or program or course, university for a student. But let's go back with starting from understanding that how did you actually, come to this point? So let's start with understanding, what did your early years look like? What kind of a family background do you come from? And what were the early influential factors in your life, whether it was seeing your cousins, parents, people around you, that probably got you to where you are today, if it had any influence or impact? My father migrated from a small town in Rajasthan, which is in district Dausa, in 1970s. So my father, I guess, मेरे दादाजी के पास में जो स्ट्रगल थी वो रोटी कपड़ा मकान की थी। तो मेरे फादर ने भी वो सेम स्ट्रगल देखी होगी। तो मेरे फादर साहब जो है वो 7 भाई हैं, तो उनमें से फादर ही थे जो दिल्ली आ गए थे। अच्छा। अपनी पढ़ाई पूरी करी उन्होंने जामिया से, और उनकी हमेशा चाहत थी कि वो अपने बच्चों को वो स्ट्रगल उनको ना देखनी पड़े जो उन्होंने देखी है। तो उन्होंने दिल्ली आके जामिया से अपनी पढ़ाई पूरी करी और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो एक एम्प्लॉई लग गए। ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब जैसे मैंने कहा कि उन्होंने वो स्ट्रगल देखी थी, तो वो चाहते थे कि उनके बच्चे वो सारी स्ट्रगल ना देखें। तो मैं अपने आप को बोलता तो हूँ कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मेरे फादर ने हमेशा हमको वो सब कुछ दिया जो एक मतलब हाई एंड फैमिली में सबको मिलता है, जो मतलब मेरे टाइम पे ही वाज वेल सेटल्ड। अच्छा, अब जब उन्होंने हमको सब कुछ दिया, तो 10th में मेरे फादर जब हार गए, तो उन्होंने बोला कि अब मेरे से आगे नहीं, काम मेरे से नहीं चलेगा, बोर्ड एग्जाम है, मेरे से नहीं होगा। तो मेरे पापा ने मुझे बोर्डिंग भेज दिया देहरादून। अच्छा। अब जब मैं बोर्डिंग गया तो फिर रियल लाइफ सामने आई मेरे, जब मुझे अपने कपड़े भी खुद धोने, पढ़ाई भी, रियलिटी चेक हो गया। एक बोर्डिंग में रहना है जो बिल्कुल जंगल होती है। बोर्डिंग में बिल्कुल जंगल होता है, सारे अलग अलग, कोई एक बड़ा ग्रुप रहेगा जो आपको डोमिनेट करेगा, एक ग्रुप रहेगा आपको मोटिवेट करेगा। तो अलग अलग ग्रुप में इंडिपेंडेंट रहना मैंने बोर्डिंग से सीखा कि इंडिपेंडेंट कैसे रह सकता हूँ, कैसे अकेले ट्रैवल कर सकता हूँ, अपने आप को कैसे सही रख सकता हूँ। अब वहां पे मेरे पास कोई भी नहीं था देखने को, मतलब मेरे मदर फादर कोई भी नहीं थे। और
बोर्डिंग कैसे होते हैं, मतलब 90s के बोर्डिंग तो कैसे होते थे, वो गुरुकुल होते थे, वहां पे इनफैक्ट टीचर्स को बोला जाता था कि हमारे बच्चों को मारो। आज तो आज उल्टा होता है कि आज उल्टा होता है कि कैसे मार दिया आपने टीचर्स ने। Exactly. तो उस समय उल्टा होता था, तो हाँ। उस मार्च ने शायद हमें ठीक किया। मैंने 12th करी 2002 में बोर्डिंग स्कूल से मैं दिल्ली आया, फिर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया बीए में, बैचलर्स में। Okay. स्कूलिंग में कभी सोचा ही नहीं था कि आगे क्या करना है, क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। जब बीए में एडमिशन मिल गया और कुछ दोस्तों को देखा कि इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तब पता लगा कि इंजीनियरिंग के लिए तो 2 साल पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेनी थी, और अब तो आप ले नहीं सकते। अच्छा, हमेशा से जुगाव इंजीनियरिंग की तरह था, हमेशा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कोई भी घर में खराब होता था तो खोलने को मन करता था, ठीक करने को मन करता था, तो वहां से इंजीनियरिंग का मन था। पर अब खराब हो गया सब, क्योंकि यू कैन नॉट गो बैक एंड चूज द राइट पाथ, और कोई बताने वाला भी नहीं था। तो बीए आपने क्यों ली थी फिर इनिशियली? ऐसे एक ना, नहीं, बहुत खराब सिस्टम है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब आज तो चेंज हो गया है। हाँ. कि कट ऑफ निकलती है। करेक्ट, कट ऑफ लिस्ट निकलती है। फर्स्ट निकलती है 95 प्लस वालों के लिए, सेकंड निकलती है 80s वालों के लिए, और थर्ड कट ऑफ में मेरा नंबर आया, मेरे 72% थे, तो मेरा नंबर आया थर्ड में, और मुझे सिर्फ एक कोर्स मिला और एक ही सीट थी लास्ट में। अच्छा. तो अभी आप आयरनी देखो कि जो खराब पढ़ता है आप उसको चांस ही नहीं देना चाह रहे हो पढ़ाई करने का। एग्जैक्टली. आप चाह रहे हो कि वो एसओएच और ना पढ़ाएंगे। मतलब कितना खराब सिस्टम है ये। हाँ. कि आप चाह रहे हो जिनके जो मेरिट होल्डर्स हैं सिर्फ उन्हें ही हम पढ़ाएंगे, बाकियों को हम पढ़ाएंगे, रेगुलर पढ़ाएंगे। हाँ. तो 1% से मैं बच गया था कि मुझे ओपन नहीं जाना पड़ा। फिर भी मैं सोचता था कि यार जो मेरे बाद के स्टूडेंट्स हैं 59, 69 ये वाले, ये ओपन जाएंगे, वहां पे पढ़ाई होती नहीं है, सिर्फ बुक्स मिलती है। तो कितना खराब सिस्टम है ये कि जहाँ पे कि जिसने नई मार्क्स लाया उसको आप पहले ही बोल रहे हो कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। एक एग्जांपल है जैसे पीछे कोटा फैक्ट्री का, जिसमें एक फोकस बैच होता है, और वो फोकस बैच किसके लिए? जो पढ़ाई में अच्छे हैं। यार फोकस बैच तो उनके लिए होना चाहिए ना जो पढ़ाई में खराब है। एग्जैक्टली. तो यहाँ से अब धीरे धीरे करके मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और मेरे फादर ने मुझे अब पॉकेट मनी देना बंद कर दिया था। वो समझ गए थे पॉकेट मनी से खराब होता है। तो मैंने अपने कॉलेज डेज के अंदर अपने कॉलेज के पास में ही एक इंस्टीट्यूट चलता था, आज भी है, NIIT कंप्यूटर सेंटर। तो मैं उसके वहां पे जाके कैनोपी बॉय का काम करने लग गया। कैनोपी क्या होती है? वो एक टेंट लगाना पड़ता है कॉलेज के पास में और पैम्पलेट देने पड़ते हैं। वो मुझे दिन के 20 रुपए देते थे कि सिर्फ पानी का पैसा मिलेगा, लंच लेके आना है, सिर्फ पानी पीना है, और वो पैम्पलेट बच्चों को देने हैं और इंस्टीट्यूट तक लेके आना है। तो वहां से थोड़ा सा एजुकेशन में एंट्री हुई कि यार ये भी एक स्पेस है। विच कॉलेज कर रहे थे आप? विच कॉलेज, मतलब सेकंड ईयर में आई जॉइंड देम एज अ कैनोपी बॉय। तो थर्ड ईयर करते करते मैं कैनोपी बॉय। बट आपने ऐसे ही स्टार्ट किया जस्ट फॉर सम एक्सपीरियंस, या क्यों कर रहे थे? टाइम नहीं बीतता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, कोई पढ़ाई होती नहीं है, कॉलेज के अंदर कुछ नहीं होता है, तो टाइम पास करने के लिए भी क्या करें। तो वैसे एक पोस्टर पे जॉब देखा कि वांटेड अ कैनोपी बॉय, और 500 रुपए मिलेंगे पर डे के। तो मैंने सोचा चलो चल के एक्सप्लोर तो करते हैं क्या है। तो टाइम पास करने के लिए, क्योंकि क्लासेस होती नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज भी बहुत कम होती है। तो उसके लिए मैं फिर चला गया, काम कर लिया, धीरे धीरे करके ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन के बाद में मैंने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली, व्हिच वाज इन प्लॉट प्लेस CP। वहां पे हमें एक स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप लानी होती थी, अलग अलग जगहों पे जाके। अब मैं कर तो रहा था पर मेरा मन नहीं लग रहा था इसमें, कि समझ नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है मेरे से, ये मेरे को चलेगा नहीं। अच्छा, हमारे घर के अंदर करियर डेवलपमेंट की कभी कोई बात नहीं होती थी, पापा से किसी से कोई करियर कि क्या करना है आगे लाइफ में, क्या होना है क्या नहीं होना, कोई बात नहीं होती। मुझे एक चीज बताओ आप, एज वी स्पीकिंग, जस्ट आपके फादर ने या एनीबडी फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, उनका ये माइंडसेट नहीं था या बिल्कुल इच्छा नहीं थी दैट यू आल्सो डू समथिंग इन लाइक अ सिक्योर गवर्नमेंट जॉब? डिड ही नेवर पुश यू टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, या बोला नहीं कि ये कर लो? नहीं, मेरे पापा को पता था कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो वो हमेशा से हमें बिजनेस में लाना चाहते। आपको अच्छा, कि हम मतलब मैं और मेरे बड़े भाई, हम दोनों को वो बिजनेस में चाहते थे कि यार कभी कॉर्पोरेट जॉब या कुछ और नहीं। अच्छा, इस पे एक और बात है, मेरे पापा को ना मैंने हमेशा से सुबह टाई पहनते हुए जाते देखता था। हाँ. तो हमेशा मन में था कि यार टाई पहननी है, जॉब करनी है, बिजनेस नहीं करना। कभी सोचा ही नहीं था कि बिजनेस करना। हाँ. बस ये कि पापा की तरह दिखना है, वो जॉब टाई पहन के जाते हैं, क्योंकि पापा के सारे जो भाई अभी भी गांव में रहते थे। तो मैं उनको धोती कुर्ता ये सब में देखता था, और मेरे पापा मुझे उन सब में सबसे स्मार्ट दिखते थे। तो मैंने सोचा मैं भी यार कुछ ऐसी जॉब करूंगा जिसमें टाई और कोट पहनना होगा, तो इसलिए फिर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मजा आ नहीं रहा था। हालांकि हम लोग स्पॉन्सरशिप लेके आ पा रहे थे, पर आसपास अपने दोस्तों को देख रहा था, तो वो सब उस समय MBA का दौर चल रहा था कि सब MBA करते हैं, तो हमको भी MBA करना है। तो मैंने मतलब आई डिस्कस्ड इट विद माय फादर, विद माय एल्डर ब्रदर कि लेट्स क्रैक दिस MBA करते हैं, सब कर रहे हैं। तो सो माय फादर स्टार्टेड एजुकेशनल फ्रेंचाइजी फ्रॉम एप्टेक कंप्यूटर्स।
जो कंप्यूटर एजुकेशन देते थे 90s में। एप्टेक सुना है मैंने। हाँ। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट जॉब तब कर रहे थे वो? मेरे बड़े भाई my Okay, elder your brother elder brother. started this computer Okay. center in South Campus, Oh, Delhi. okay. So he came to me कि कितना खर्चा आएगा तेरा MBA में, तो मैंने कैलकुलेट करके उसको बताया कि 40-50 लाख रुपए आएगा। तो बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन मी, मेरे को इन्वेस्ट कर दे, मैं तेरे को प्रैक्टिकल MBA करवाता हूँ। तो मुझे तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आई, काफी डिस्प्यूट हुए घर में कि नहीं ये चाहते नहीं है कि मैं जाऊँ पढ़ूँ ये सब करूँ, पर ठीक है, दोनों ने, पापा ने और भैया ने मुझे कन्विंस कर लिया कि मैं इनको ज्वाइन कर लूँ। अच्छा। तो मैंने फिर उनको ज्वाइन कर लिया। यहाँ से मेरी एंट्री हुई एजुकेशन में कि अब एजुकेशन सेंटर में हम लोग आ गए, जहाँ पे कि कंप्यूटर उस समय नए नए सिखाना शुरू हुए थे 90s में। कंप्यूटर नए तब तो बहुत क्रेज था टू लर्न। तब तो बहुत क्रेज था, मतलब इनफैक्ट पेंट सीखने का क्रेज होता था कि पेंट के माइक्रोसॉफ्ट में पेंट कैसे करते हैं ना, वर्ड कैसे सीखते हैं, एक्सेल कैसे सीखते हैं, तो ये तो बहुत एडवांस होते थे। तो हम लोग को पेंट और स्टार्ट बटन और माइक्रोसॉफ्ट सिखाने की स्टार्टिंग करी हमने। धीरे धीरे हम लोग 2009-2010 में हम जो हमारी कंपनी थी, वी सोल्ड दैट कंपनी टू अ बॉम्बे बेस्ड वेंचर कैपिटलिस्ट। ओके। और फिर हम लोग इस हायर एजुकेशन में आए। हायर एजुकेशन स्पेस में हम लोग क्यों आए? जो कंपनी हमने बनाई थी वो कंपनी हमने नो प्रॉफिट नो लॉस में बेची, मतलब हमें कुछ नहीं मिला उस कंपनी में जब जो हमने बनाई दोनों ने, और वो कंपनी जब हमने बेची वेंचर कैपिटलिस्ट को, तो उसमें हमें कुछ नहीं मिला, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। अब हमारा सारा किस साल में आपने बेची? 2011 में हम लोग ने बेच दी थी। ओके। इस कंपनी को बनाने के लिए हमने अपना घर भी मॉर्गेज कर दिया था, पापा का सारा VRS का फंड भी लगा दिया था, तो नहीं चल पाया। और हमने ये नो प्रॉब्लम, मतलब लाइबिलिटी में कंपनी थी तो लाइबिलिटी में ही सेल कर दी 2011 में। तो 2011 के बाद में वी वेंचर्ड इनटू दिस हायर एजुकेशन स्पेस, जो जहाँ पे हमें दिखा कि कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो वी ट्राइड टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ ऑल दीज एजेंट्स पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे कि वो इंग्लिश सिखाते थे, ट्यूशन सेंटर्स देते थे, एजुकेशन देते थे। इन सब सेंटर्स पे हमने जाके बोला कि डिस्टेंस के थ्रू कैसे पढ़ाई करनी है, बच्चों को BBA BCom कराना है 2 tier 3 tier सिटीज में, आप प्रमोट करो। वो हमें फॉर्म देते थे, हम यूनिवर्सिटीज को देते थे। तो वी बिल्ड दिस B2B नेटवर्क 2012 से 2018 तक। पर मतलब अभी भी खुश नहीं थे, वी वर नॉट हैप्पी कि पाथ मिल गया, चल रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा पाथ मिल गया। पर इस सब के बीच में आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि कोई जॉब या कुछ और कर लें? यू वर वेरी क्लियर कि कुछ बिजनेस साइड पे ही करना है। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज आपको वो श्योरिटी कैसे आई कि आई विल बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन ओनली एंड आई डोंट वांट टू वर्क? ऐसा नहीं है, मैं इसको अग्री करता हूँ कि 2012 में जब ये कंपनी सेल करी तो मैंने ट्राई किया जॉब का, पर नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, बहुत ट्राई किया, 6 महीने बहुत ट्राई किया, पर नहीं मिली। अब वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि कोई जॉब सीकर्स में जो मैंने देखा, जो मैं भी आज भी यूज करता हूँ, कि कोई बिजनेस करके आया है अब जॉब करने ना, तो वो कर नहीं पाएगा, अब हो नहीं पाएगा। तो जब मेरे रिज्यूमे लिखा हुआ था कि पहले बिजनेस करता था और अब जॉब करना, तो नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद में ये दिखा एरिया हायर एजुकेशन का, तो इसके अंदर चले गए और ये करते रहे 2018 तक। तो मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों ये काम कर रहे थे। फिर सार्थक है मेरा कजन, जो 2018 में आया इंटर्नशिप करने के लिए हमारे पास में, which is was very young that time, मतलब कॉलेज किया ही था उसने, इंटर्नशिप करने आया। तो while doing internships उसने बोला कि जो आज चल रहा है आपके बिजनेस में वो नहीं चलेगा, let's get into retail। let's get into retail बिजनेस, जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को रीच आउट करते हैं, काउंसिल करते हैं और उनको ऑप्शन देते हैं यूनिवर्सिटीज के। तो वहां से हमने 1 या 2 यूनिवर्सिटीज के साथ में काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो हमने ये सोचा कि यार ऑप्शंस क्यों नहीं है हमारे पास में। जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं है बच्चे को देने के लिए, तो बच्चे के पास ऑप्शंस कहाँ से आएंगे चूज करने के। वहां से प्लानिंग हुई कि यार कॉलेज विद्या एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके प्लेटफॉर्म है, शूज का प्लेटफॉर्म है, मिल्क बाइंग का प्लेटफॉर्म है, अमेज़न मार्केट प्लेसेस है, ट्रैवल का पोर्टल है, हर किसी चीज का पोर्टल है। पर एजुकेशन स्पेस में अभी कोई पोर्टल नहीं है कि जहाँ पे सारी चीजें लिस्टिंग हो, पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटी लिस्ट हो। तो वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई कि हम लोग कॉलेज विद्या, अच्छा हमें पाथ मिलने में करीबन 35 साल लगे यार। 35 साल मतलब 35 ईयर की एज में मैंने ये जाना, 35 ईयर की एज में मैंने ये जाना कि अब मुझे राइट फिटमेंट, राइट पाथ क्या है। उसके पहले आई वाज नॉट श्योर, मतलब कभी प्लानिंग नहीं की थी अपने करियर की, बिजनेस की। यहाँ पे आके पाथ मिला कि अब इसके अंदर लग जाना है, इसको छोड़ना नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। नो, मतलब जब आप बता रहे थे कि यू स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ लेट्स से गिविंग ऑप्शंस, और तब आपको रियलाइज हुआ अगर हमारे पास ही ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के या कोर्सेज की अवेलेबिलिटी और ऑप्शंस नहीं है तो हम बच्चों को कैसे देंगे टू चूज फ्रॉम।
एंड देन यू ऑब्वियसली वेंट बैक टू सी कि हर स्पेस में, ट्रैवल स्पेस में, आपने बोला फूड इंडस्ट्री में, जो भी है, कंपैरिजन प्लेटफॉर्म्स या पोर्टल्स जो है, मार्केट प्लेसेस बहुत सारी है, बट इट्स नॉट एक्चुअली देयर इन द एजुकेशन स्पेस. बट व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज, तो जब आपने यू गॉट कन्विंस्ड, आपको इस आइडिया पे कन्विक्शन आ गया कि नाउ ऑल माय एनर्जी फोर्स हम इसी पे डालेंगे, एंड यू स्टार्टेड बिल्डिंग कॉलेज विद्या. इनिशियल ईयर्स में, लाइक जब आपने जस्ट स्टार्ट किया, what was that one specific problem statement जिसको लेके आपने स्टार्ट किया, that this is what we will solve for, and any one specific challenge also that you faced while you were trying to solve for that problem statement? देर है, मैंने जितने फाउंडर्स देखे ना, हाँ. वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में दे आर इनटू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनके खुद के साथ हुई थी. मैंने हाँ, वही तो एक्सपीरियंस की होगी. तो जो मैंने पुरानी अपनी स्टोरी बताई कि 11th में मुझे नहीं पता था, 12th पास करने के बाद में मुझे नहीं पता था. हाँ. अच्छा, मेरे पास बताने वाले कौन थे? मेरे दोस्त थे, मेरी फैमिली थी. मेरी फैमिली से मेरी बात होती नहीं थी. दोस्तों को जब खुद नहीं पता होगा तो वो मुझे क्या बताएंगे? हाँ. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वहां से आई थी कि यार चूज करने के लिए कोई मेंटर तो हो, कोई गाइड तो हो, या कोई जगह तो हो जहाँ पे जाके मैं देख सकूं कि यार क्या क्या अवेलेबिलिटी है. राइट. आज पहले भी हम लोग घूमते थे, ट्रैवल इंडस्ट्री थी. आज ट्रैवल इंडस्ट्री और ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक वेबसाइट पे आप बहुत सारी जगह देख पा रहे हो, उनके एक्सपीरियंसेस देख पा रहे हो. तो कॉलेजेस में ऐसा क्यों नहीं था कि प्लेसमेंट कैसी होती है, रिव्यूज कैसे हैं, फैकल्टी कौन है, क्या क्या अप्रूवल्स है, ये कौन चेक कराएगा, कैसे पता लगेगा? बच्चा तो खुद अभी पढ़ा लिखा नहीं है. मैं तो 12th क्लास बच्चे को बोलता हूँ कि वो अभी निकला ही है, अभी तो बाहर ही आया. वो कैसे करेगा सारे रिसर्च कैसे करेगा? तो फर्स्ट चैलेंज वाज टू बिल्ड अ लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया. वैसे हमारी कंट्री बहुत बड़ी है यार, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, कंटेंट बहुत सारा है, उसको एक जगह पे लाना वाज अ चैलेंज. गेटिंग, मतलब अब क्योंकि खुद टेक ब्रांड बैकग्राउंड के नहीं थे, तो जो आपके मन में है वो टेक वालों को बताना, कन्विंस करना और वो टेक बनाना वाज द सेकंड चैलेंज. मतलब आपका आइडिया वो उसको रियलिटी में कैसे उसको आज हम बात करें इंडिया में, हर किसी के पास आइडिया है यार, बिजनेस आइडिया सबके पास है, पर आइडिया को अब आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो वो प्रॉब्लम बनती है. क्योंकि आइडिया सबके पास है यार, गांव में 4 दोस्त बैठते हैं, उनके पास एक आइडिया होता है, पर वो कैसे आप उनको बताते हो, तो वो चैलेंज था स्टार्टिंग डेज के. Got it. And over, like, आप मुझे ये भी बताओ कि जब let's say धीरे धीरे ऑब्वियसली जब आपने यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट किया होगा, यू वुड हैव स्टार्टेड लिस्टिंग देम, जब आप उनके कोर्सेज डाल रहे थे, इनिशियली जो ट्रैफिक आ रहा था ऑन द वेबसाइट कॉलेज विद्या पे, और व्हाट वाज द पैटर्न और द बिहेवियर जो आपने नोटिस किया ऑफ द इनिशियल सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे थे, मोस्टली क्या ढूंढ रहे थे वो इन द हायर एजुकेशन स्पेस? व्हाट वाज द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज इट दैट दे वर ट्राइंग टू कंपेयर फॉर मोस्टली? जरे हमने जब स्टार्ट किया तो हमें दिखा कि ज्यादातर बच्चा जो है टियर 2 टियर 3 सिटी से आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे. ठीक है. मेट्रो वाला जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनको सब पता होता है, एक अच्छी सिटी में रहते हैं, उनके आसपास एक्सेस होता है उनके पास. टियर 2 से आ रहा था, टियर 3 से आ रहा था, और फीमेल्स आ रही थी. अच्छा. तो ये 3 चीजें हमें डेटा से मिला कि टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज, यहाँ आज भी लोगों को नहीं पता कि ऑनलाइन मोड से एजुकेशन मिल सकती है. वो आते थे हमारे पास में और बोलते थे मुझे रेगुलर में एडमिशन लेना. अब जो बच्चा टियर 2 से आ रहा है उसकी बैंडविड्थ भी नहीं है कि वो शहर जाके पढ़ सके, उतना अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है उसकी. अफोर्डेबिलिटी सबसे बड़ा कारण है. फीमेल के साथ है कि उनके पेरेंट्स ही जाने नहीं देते. हाँ, तो रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है. तो ये सॉल्यूशन ना पता ही नहीं था कि ऑनलाइन, और आज भी हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, पर कंट्री का बहुत बड़ा ऐसा चंक है जहाँ पता ही नहीं है कि ऑनलाइन से भी एजुकेशन आज भी अवेयर नहीं है. मतलब हम लोग हैं जो इसको आज भी नीचे लेके जा रहे हैं कि ये नीचे पहुंचे. हमारे पास बहुत छोटे छोटे टाउन, छोटे छोटे गाँव से बच्चे हैं जो आज भी आते हैं, जो पता लगता है फिर वो खुद प्रमोटर बनते हैं अपने एरिया में कि हाँ एक ऐसा ऑनलाइन जगह है. तो ये 2 चीजों ने हमें बड़ी मदद करी कि टियर 2 में जाओ. रियल भारत जो है वहीं रहता है. मेट्रो तो कितनी है, गिनती में गिनेंगे तो 5 मेट्रो सिटीज आएंगी. बाकी रियल भारत तो हमारा टियर 2 टियर 3 में ही है. तो प्रोडक्ट उन्हीं के लिए बनाते हैं, सर्विस उन्हीं के लिए बनाते हैं. तो हमने फिर इसको ऐसा डिजाइन करने की कोशिश करी और इसको ऐसा मार्केट करने की कोशिश करी कि टियर 2 और टियर 3 में जाए और फीमेल्स के पास जाए. वेरी इंटरेस्टिंग. एंड सो आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि जब आप एजुकेशन इंडस्ट्री की हम बात करते हैं एंड वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इन द सेंस, बिकॉज आई फील सबके पास ओपिनियन है अबाउट व्हाट इज नॉट ओके इन द सिस्टम, और या जो भी हमें पढ़ाया जा रहा है हाउ इट इज नॉट रेलिवेंट, या जो भी लर्निंग हो रही है वो प्रैक्टिकल नहीं है, या क्यों आउटकम्स नहीं आ रहे हैं. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जब
आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लाइक यू सेड फीमेल वाली प्रॉब्लम आपने बोला, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस की प्रॉब्लम, ट्रैवल ना कर पाने की प्रॉब्लम, या वर्किंग प्रोफेशनल्स का केस ले लो, who have to earn and support their family because they are the bread earners or soul earners maybe, so they cannot leave their job. वो जॉब नहीं छोड़ सकते, बट साथ ही साथ उनको अपस्किल करना है, लेट्स से, या अपने आप को अपग्रेड करनी है, अपनी नॉलेज। उन लोगों के लिए तो फिर ऑप्शन ही आपके पास एक ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम बचता है, राइट? बट मुझे आपसे जानना है दैट हाउ डू यू स्टिल फ्रॉम अ लर्नर स्टैंड पॉइंट, एक लर्नर कैसे इसको in a positive sense ले सकता है और समझ सकता है, how do you make the most of an online learning program? Because I feel even today most course takers online any kind of course distance learning, आपको पता होगा completion rate शायद 60-63% है, भी नहीं है, हाँ, correct, उल्टा है, मतलब 63% भी नहीं है। तो उस चैलेंज के लिए फिर how do you solve for this in this ecosystem? तो मैं इसको ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि पहली प्रॉब्लम आपने जो बताई कि वो ड्रॉप आउट हो जाता है। करेक्ट। फर्स्ट ईयर में आता है, सेकंड ईयर में नहीं आता, फिर थर्ड ईयर में तो फिर आता ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू होती है कि पैसा कमाना है, उसको बाहर निकलना है, पैसा कमाना है, तो पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा, और पढ़ाई कर भी पाएगा तो उसके पास टाइम का है। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व करती है ऑनलाइन की अफोर्डेबल है ये मतलब वो इसमें एनरोल कर सकता है, वो उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा कि जितना रेगुलर कॉलेज में देना पड़ेगा। टीयर 2 या टीयर 3 में रहते हुए वो टीयर 1 की यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज यूज कर पाएगा घर पे बैठ के, मतलब कहीं भी बैठ के, एनीवेयर। ड्रॉप आउट का कारण ये है कि जब फर्स्ट ईयर में वो जाता है, पहले तो उसको ना अपने मनपसंद का कॉलेज ही नहीं मिलता, उसकी चॉइस का कोई कॉलेज ही नहीं मिलता, उसकी चॉइस की यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, उसकी चॉइस का कोर्स ही नहीं मिलता। तो उसका पहले ही मन ना आपने पहले ही काट दिया, जो मैंने आपको अपने साथ केस में बताया था कि पहले ही खराब कर दिया। आपको बीए फिर मिली वही, क्योंकि थर्ड लिस्ट में आया था, थर्ड लिस्ट में नाम आया, तो इन बच्चों का पहले ही मन खराब हो जाता है, इनका पहले ही मन उस कोर्स का परस्यू करने को मिलता नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन में आपके पास में वैरायटी ऑफ कोर्सेज है जो कि आप चूज कर सकते हो अपने लिए, जो आपको अच्छा लगता है आपकी अपनी चोजन यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे ये सारे फायदे मिल जाते हैं बच्चों को कि उसका ड्रॉप आउट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। कि अफोर्डेबल, पहला प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी का, दूसरा प्रॉब्लम कि मेरा जो चॉइस था मुझे वो नहीं मिला, तो यहाँ पे चॉइस भी ओपन हो जाता है। अच्छा, एक बड़ा कंट्रोवर्शियल आया आपकी स्टेटमेंट में कि एजुकेशन सिस्टम, मतलब मैं इसको ना हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि अब इंडिया को टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। Correct. बहुत सारे लोग हमारी कंट्री के आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, ये सबको पता है। वो भी तो इसी एजुकेशन सिस्टम के गए हुए हैं यार। सही बात है। सत्य नडेला है ना, सुंदर पिचई, इसी एजुकेशन सिस्टम के तो पार्ट है यार वो। तो हम कैसे अपने सिस्टम को खराब बोल सकते हैं? जस्ट टू मेक अ स्पेस इन द रूम फॉर योरसेल्फ, आप अपने एजुकेशन सिस्टम को बेकार बोल देते हो। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में बेकार नहीं, पर प्रॉब्लम तो है ना कुछ, इट इज देयर इज सम फॉल्ट इन इट ना, कुछ तो है। मैं ये नहीं बोल रही पूरा खराब है, बट फॉर श्योर देयर इज समथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड। हाँ, अब वो जो इम्प्रूवमेंट है, अब वो इम्प्रूवमेंट कैसे होनी है? इतनी वास्ट कंट्री है, ये बड़ा चैलेंज है। हम हमेशा बोलते हैं कि पॉपुलेशन हमारे लिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन है और डिसएडवांटेज है कि पॉपुलेशन है। IITs एंड IIM हैव बीन रैंक्ड, मतलब टॉप 10 टॉप 25 में आते हैं वर्ल्ड के। वहां भी इंडियन फैकल्टीज ही पढ़ाते हैं, इंडियन कंटेंट ही पढ़ाया जाता है। आज IITs और IIM भी निकल गए हैं ऑनलाइन स्पेस में, और वही फैकल्टी पढ़ाएंगे। तो ये जो इंफ्रा की प्रॉब्लम थी, वो इंफ्रा की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के, मुझे नहीं कहना चाहिए पर फैकल्टीज में है। सिस्टम में खराबी नहीं है, उन फैकल्टीज में है कि वो फैकल्टीज वो नॉलेज नहीं दे पाते, कर पाते बच्चों में, जो मेट्रो में या IITs या IIM में होता है। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, अब वही प्रॉब्लम, वही नॉलेज निकल पा रही है ना। यार, आज से 20 साल पहले जाओ, हॉलीवुड मूवीज कहाँ देख पाते थे वो? टीयर 2 टीयर 3 में कहाँ लगती थी? हम मेट्रो सिटीज में देख के, हॉलीवुड मूवीज देख के उसी ट्रेंड को फॉलो करते थे ना, वैसे ही बनते थे, वैसे ही चलते थे, वैसे ही करते थे, वैसे ही गाने गाते थे। आज वो चैनल ओपन हो गया टीयर 2 टीयर 3 के लिए कि आज वो प्लेटफॉर्म पे, OTTs पे कुछ भी देख सकते हैं, पूरी दुनिया ऑनलाइन है। तो आज कॉन्फिडेंट हो रहे हैं ना, आज एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, हमारा GDR बढ़ रहा है। अच्छा, एक सबसे बड़ा फर्क कि डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GER रेशियो, वो करीबन 70-80% होता है। ओके, कि अगर 12th क्लास बच्चा 100 बच्चा पास कर रहा है तो 70-80% ग्रेजुएट है। तो ये इसको हम बोलते हैं कि डेवलप्ड है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि 27% है। तो बाकी का जो 70% करीबन ड्रॉप आउट हो जा रहा है, नहीं जा रहा कॉलेज, उन्हीं को तो लेके आना है हमें। अब उनकी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करनी है कि यार आप नहीं जा सकते कॉलेज, ठीक है, आपके घर आएगा कॉलेज, ऑनलाइन के थ्रू आएगा। तो ये ऑनलाइन, मतलब दिस इज व्हाट इंस्पायर्ड अस टू स्टार्ट कॉलेज विद्या, प्लेटफॉर्म वेयर ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज कैन हेल्प
एवरी लर्नर अक्रॉस इंडिया इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए देयर। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है कि access to opportunities has to be equal. I agree. Because just because कोई एक particular जगह से आ रहा है या उसके पास वो सुविधा नहीं है, they cannot be denied of that access, like you said. And again, going back to वो problem जो आपने face किया, and I think that's why it's translated into this and the way it is. पर I would also like to understand, आपने I think थोड़ा सा टच किया था इस पर, बताया था कि सार्थक जो आपके कजन थे उन्होंने आपको तब इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया था और बताया था दैट जिस वे में आप जो भी मतलब ऑपरेट कर रहे हो वो नहीं चलेगा इन फ्यूचर टाइम्स। When you started college Vidya, आपके जो co-founders हैं, how did you meet them and how were you very certain कि इनके साथ ही build करना है आपको? Like because I feel जब आप कुछ build कर रहे हो from scratch, right? And today you are at 500 plus employees. It's a big team, and obviously you guys have ventured and only grown over the few years. तो जब पर when you're building something, you have to choose the right partners to build it with. So what was your mindset and thought process जब आप choose कर रहे थे कि मेरे co-founders कौन होंगे? तो पहले जो मेरे मेरे एल्डर ब्रदर है मिस्टर मयंक गुप्ता, वो तो मेरे साथ में थे, हम लोग तो दोनों साथ में थे। व्हेन सार्थक केम वी थॉट देयर इज अ न्यू ब्रेन व्हिच इज एंटरिंग इनटू आवर सिस्टम हु इज मच अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। मतलब देखिए आज भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो 70s के हैं, 80s के हैं, और वो मैं भी 80s का ही हूँ, हम भी वैसे ही सोचते हैं जो हमने देखा है 90s में 2000 में होते हुए। आज की प्रॉब्लम या पुरानी प्रॉब्लम को टेक के थ्रू ही सॉल्व करना है, और वो टेक किसको आता है, कौन बना सकता है, कौन सोच सकता है, वो न्यू एज बच्चे जो हैं वही सोच सकते हैं उसको और वही बना सकते हैं। क्योंकि अब आज आजकल ये भी बोलते हैं कि अब 20 से 30 में बच्चा ज्यादा कमा रहा है जितना कि 30 प्लस वाले कमा रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि अब वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को सिस्टम में डालने के लिए एक हमें फ्रेश यंग ब्रेन की जरूरत थी। तो इसलिए एंटर हुआ सार्थक बिल्कुल राइट टाइम पे। और एक दूसरी चीज 2019 वाज द ईयर जहां पे इंडिया ने ऑनलाइन को अप्रूवल दिया था। उससे पहले ऑनलाइन एजुकेशन वाज नॉट अप्रूव्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, ओके। तो और 2020 में हम सबको पता ही है पैंडेमिक, और उसको हम लोग बोलते हैं एड्यूमिक, मतलब हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं उसको एड्यूमिक आया था, जो क्या बोलते हैं आपदा में अवसर बन गया। हाँ, लिटरली या इट वाज मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज बोलो या कुछ भी बोलो, इट वाज दैट टाइम जब वो एक बूम आया था। सो जैसे आपने बताया वी ऑब्वियसली दैट द थ्री ऑफ यू केम टुगेदर एंड ऑब्वियसली यू ऑब्वियसली एंड द थ्री ऑफ यू केम टुगेदर एंड आपने डिसाइड किया दैट लेट्स सॉल्व फॉर दिस प्रॉब्लम, एंड आपने ऑब्वियसली उसको स्केल किया है टू द लेवल इट इज टुडे। बट आई वांट टू नो दैट जब स्टार्टिंग में टीम वाज ऑब्वियसली वे स्मॉलर देन व्हाट इट इज टुडे, एंड जब कम रिसोर्सेज होते हैं बट यू आर स्टिल सॉल्विंग फॉर अ लार्ज प्रॉब्लम और एक विजन होता है एज एंटरप्रेन्योर्स, you I think are very mindful of the kind of people you hire into the system also, because आपकी team at the end of the day I feel is extremely important, क्योंकि आप as a founder एक vision देख सकते हो बट अकेले आप कुछ build नहीं कर सकते हो। तो आप तीनों जब specifically hiring कर रहे थे in the early times also and even now, आप कैसे इंश्योर करते हो? आई नो 100% कोई इंश्योर नहीं कर सकता, बट हाउ डू यू इंश्योर कि द राइट पीपल विद द राइट सेट ऑफ वैल्यूज जॉइन द टीम, दे आर अलाइन्ड विद वेयर कॉलेज विद्या इज गोइंग, एंड आर देयर एनी पैरामीटर्स, चेक्स, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज जो आप डेफिनेटली देखते हो व्हेन यू आर हायरिंग टैलेंट, ताकि जो एक कल्चर है जो आपने बिल्ड किया हुआ है वो मेंटेन रहे एंड यू आर एबल टू स्केल इन द राइट मैनर एज अ कंपनी? यार ये मैं आज भी अपने इंटरव्यूज में पूछता हूँ, और पता नहीं है मैंने कहीं से सीखा नहीं है, अपने आप आया। हाँ। कि राइट फिटमेंट टैलेंट ना फैमिली से आता है, एक्चुअली फैमिली से पता लगता है। तो मैं आज भी पूछता हूँ कि वो क्या कहाँ से आता है, मतलब जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ कि घर में कौन कौन है, कौन क्या क्या करता है, भाई बहन कितने हैं, रहता कहाँ है, यहाँ से ना इंटेंट आता है। जहाँ पे आपको पता लगे कि बिजनेसमैन का बेटा है, बड़ा पैसा है, घर में गाड़ी है, ये है वो है, तो मुझे लगता है कि वो हमारी वाली जॉब के लिए फिट नहीं है, शायद किसी और जॉब के लिए होगा। तो मैं हमेशा ये जाने, देखिए टैलेंट को नर्चर करवा लेंगे हम लोग, फ्रेश को मतलब कोई भी फ्रेशर को धीरे धीरे सिखा लेंगे हम, पर सीखने का इंटेंट होना चाहिए, और वो सीखने का इंटेंट ना जरूरत से आता है। तो वो जरूरत जानने की कोशिश रहती है कि घर में कौन कौन है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, भाई बहन कौन कौन है, रहते कहाँ है, घर अपना है या नहीं है। तो वहां से ना वो हंगर पता लगती है कि यार हंगर कितनी रहेगी लाइफ में, स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, किस फैमिली से आता है। तो ये डे वन से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा रिसोर्स है वो सही बैकग्राउंड से है, तो ये बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए।
नहीं, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड मैं भी मतलब इन अ वे एटलीस्ट फैमिली बैकग्राउंड के पर्सपेक्टिव से पहली बार सुन रही हूँ, बट आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जैसे आपने बोला आप जिन हालातों से आते हो और जिस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड से आते हो वो ट्रांसलेट करता है इनटू हाउ मोटिवेटेड यू आर, आपकी जरूरतें कितनी हैं, हाउ कमिटेड यू विल बी टू द प्रोसेस आल्सो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी जानना है दैट डू यू बिलीव इन द फैक्ट दैट स्किल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अ डिग्री, या what are your thoughts on the importance of a degree versus how you make use of that degree and put the skills into use? Because इस पे भी बहुत बातचीत करते हैं लोग and debate तो constant ही चलती है. I don't look at it as a debate, but I want to understand आपका perspective क्या है on this skills versus degree वाला topic. डिग्रीज ना हमें हमें ये बताया गया है कि वो एक बेसिक एजुकेशन है हमारी. हम कई बार बात करते हैं कि हमें स्कूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई गई जो हमारे काम नहीं आती. Right. पर क्या किसी ने रोक दिया अपने बच्चे को स्कूल जाने से? नहीं. हम बात ही करते आ रहे हैं इतने सालों से कि यार स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं हमें, पानीपत की लड़ाई सिखाते हैं हमें, दिल्ली का लाल किला सिखाते हैं हमको. क्यों बताते हैं? काम तो नहीं आता. पर ये ना कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंसान को इंसान बनाता है. तभी तो हम फर्क जान पाते हैं ना लिटरेट और इलिटरेट का. Yeah. तो डिग्री को भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब हम बोलते हैं कि बच्चा 12th तक पास करो फिर डिग्री लो, उसके बाद में करियर की दुनिया में जाओ. आज कोई दिक्कत नहीं है 12th के बाद भी करियर में जाओ और मतलब अपना करियर बना लो, स्टार्ट कर लो, पर डिग्री को छोड़ो मत. दैट्स अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब आपको मैं ऐसा बोलूंगा कि एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा अगर आप बोलोगे कि 12th पास हूं मैं. कितनी जॉब वैकेंसीज हम लोग देखते हैं आज जिनके अंदर लिखा होता है कि 12th पास हम लोग ले लेंगे. तो बेसिक है ये. स्किल्स कोई मना नहीं कर सकता कि बहुत इंपॉर्टेंट है. स्किल्स हमें साथ में सीखनी होगी. हालांकि आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इनफैक्ट स्कूल्स में अब तो स्किल्स को पार्ट बना दिया सिलेबस का पार्ट बना दिया. 5th और 6th से एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाना स्टार्ट कर दिया 6th से. और डिग्रीज में भी क्योंकि जरूरत थी है. अडैप्ट करना जरूरी था. आज आईटी में इतनी सारी लैंग्वेज है यार, इतनी सारी लैंग्वेज. जब वो डिग्री करके सीखना स्टार्ट करेगा तो बहुत लेट हो जाएगा. तो डिग्री के अंदर ही उसको स्टार्ट सिखा देते हैं ना. तो अब मुझे लगता है काफी कुछ ये सॉर्टेड है कि डिग्री के साथ में स्किल्स करो. ऐसा नहीं डिग्री करके आप निकलोगे तो आप किसी काम के नहीं होगे, पर डिग्री के साथ में स्किल्स कर लोगे तो आप एक बेटर पैकेज बन जाओगे एम्प्लॉयर के लिए. राइट. नहीं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. एंड या मतलब जैसे कि आपने बोला दैट व्हेन इट कम्स टू अ डिग्री और अ स्किल, मतलब इट इज जस्ट द बेसिक फाउंडेशन आपकी जो एक ले होती है और उसको मतलब इग्नोर तो नहीं किया जा सकता इन अ वे, बट हाउ यू मेक यूज ऑफ इट अल्टीमेटली वो आपके ऊपर ही है इन अ वे. एंड जैसे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स डिग्री, आपको पता है द न्यू वेव आई फील हैज कम जहाँ पे AI, these advanced tools, सब बात कर रहे हैं अबाउट ले ऑफ, जॉब मार्केट नॉट बीइंग गुड. मतलब हर कोई बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स विल गेट रिप्लेस्ड या नई जॉब्स आ जाएंगी. जो भी ये सारी बातचीत हो रही है, ऑल द क्लटर एंड नॉइज अराउंड AI. I want to also know again your perspective on how are you looking at this and the impact it will have on the education industry, online learning industry in general. Because one thing is for sure, I have understood कि कोई भी escape नहीं कर सकता है इसको. It is here to stay. AI आ चुका है. You have to put it to use. You have to learn to live with it. But then how do you overcome this challenge? Because मुझे लगता है कि अगर लोग complacent रह जाएंगे या डरने लगेंगे AI से, then तो for them it's not going to be easy to move forward because it is here. But I want to know आपको क्या लगता है about this? There are new age technologies है, आएंगी और ऐसा नहीं है कि आज आई हैं. हाँ. हम ये बात करीबन 20-25 साल से कर रहे हैं कि तब भी कंप्यूटर्स आए थे, कैलकुलेटर्स आए थे. कंप्यूटर्स इंडिया में 85 या 86 में HCL लेके आए थे. और तब भी क्योंकि मुझे ध्यान है कि मेरे फादर साहब ये बात करते थे कि यार अब कंप्यूटर आ गए, हमारा काम तो कंप्यूटर कर लेगा. बहुत पुराने टाइम पे आपको ध्यान होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में टेलर्स, कैशियर्स को डर लगने लग गया था कि यार अब तो डेबिट क्रेडिट बैंक कर देगा. तो ये आज से नहीं है, ये 90s से है. ये 2000 में भी था, 2010 में भी था, 2020s में भी है, आज भी है ये कि AI आ गया. ये टेक्नोलॉजीज पिछले 30 साल से नई नई आती रही है, आती जाएंगी, आगे भी आएंगी. एक डेकेड पूरा खत्म होगा, 2030 आएगा, उसमें नई टेक्नोलॉजी आएंगी. पर ह्यूमंस को ऐसा नहीं है कि रिप्लेस कर दिया जाएगा, कभी नहीं हो सकता. हाँ, चैलेंजिंग ह्यूमंस के लिए हो जाएगा, आज भी हो गया है कि लर्निंग को अब हम रोक नहीं पाएंगे. मतलब पहले बोलते थे ग्रेजुएट हो गए बस, उसके बाद में अब काम करेंगे, काम पूरा हो गया. पर अब हमें न्यू एज लर्निंग को अडेप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. आखिरकार वो सब बैंकर्स को कंप्यूटर सीखना पड़ा. पहले कंप्यूटर सीखना पड़ा, पहले विंडोज सीखना पड़ा, फिर उसके सॉफ्टवेयर सीखने पड़े. और आज हर साल ये ट्रेनिंग लेते हैं, नए सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, नए टूल्स आ जाते हैं. उन सब की तो हमें पढ़ते रहना पड़ेगा. मतलब अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा. और अपग्रेड अगर हम नहीं हुए
तो फिर हम उस रेस का पार्ट नहीं बन पाएंगे, हम लोग पीछे आ जाएंगे। या मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग अगर आप नहीं करोगे देन यू आर आउट ऑफ द रेस ऑब्वियसली। गॉट इट। हाउ डज समवन इंश्योर कि जब वो अपने रेज्यूमे पे ये डालें दैट आई हैव डन एन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी, इतने साल का जो भी मास्टर्स था, MBA था, जो भी PG डिप्लोमा था, वो उस ऑनलाइन लर्निंग कोर्स को जो भी 1 साल 6 महीने या 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, हाउ कैन अ लर्नर मेक द मोस्ट ऑफ इट? बिकॉज आई स्टिल फील पीपल डोंट नो कि आप एक्सट्रैक्ट उससे बेस्ट वैल्यू कैसे करो, क्योंकि आपको फैकल्टी, जैसे आपने बोला Tier 1 कॉलेज की पढ़ा रही पर ऑनलाइन पढ़ा रही है, उनको फिर भी लगता है कि I don't have complete access to it, या they are not able to make the most of it. So what is the best way that you make use of the online learning that's given to you from the best universities and faculty? वो कैसे एक learner achieve कर सकता है? तो लर्नर के पास ना ऑनलाइन में सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज रहता है कि वो सीख के अप्लाई कर सकता है। रेगुलर में वो कॉलेज में रहता है, करेक्ट, तो वो थियोरिटिकल पढ़ता है। हाँ। पर जहाँ ऑनलाइन की बात आती है तो वो आज पढ़ के और अप्लाई कर सकता है। इंटेंट की जहां तक बात रही कि इंटेंट को हम लोग नहीं चेंज कर सकते, पर हाँ हम लोग इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। करेक्ट, क्योंकि जब क्लासरूम में फिजिकली बच्चा है तो वो इंगेजमेंट वहीं बढ़ा सकते हैं हम लोग, पर ये जब ऑनलाइन है तो यहाँ हमें इंगेजमेंट बहुत बढ़ानी पड़ेगी। ये रिजल्ट ड्रिवन मार्केट है, ये स्कूल्स में भी होता था कि सब बच्चों के 90% नहीं आते थे। इंटेंट वहां भी प्रॉब्लम थी, इंटेंट कॉलेजेस में भी प्रॉब्लम थी, इंटेंट यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम थी, इंटेंट इनफैक्ट आपके बिजनेस में भी यही है। हाँ, स्कूल में तो स्कूल का नाम हो जाता है जब कोई एक बच्चा 99 ले आता है तो ये स्कूल था और इसमें से इस बच्चे का 99। पर एक बिजनेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये कि आप सबको एट पार परफॉर्मेंस लो, सबकी A1 परफॉर्मेंस सबकी आए, तो ये पॉसिबल बिजनेस में भी नहीं हो पाता। ये बिजनेस का चैलेंज डे 1 से है और ये हमेशा डे 100 तक भी रहेगा। Right. यस, ऑनलाइन में भी बच्चे के पास में इंटेंट की प्रॉब्लम रहती है, पर जब जिसकी इंटेंट की प्रॉब्लम है उसका हम कोई वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता, करेक्ट, वो खुद भी नहीं कर सकता। पर यस, आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो और अच्छी बात ये होती है ऑनलाइन में कि आप सिखा के उसको एक्चुअली प्रैक्टिकल में लगा सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन में जो स्टूडेंट है, जब आपने रिज्यूमे की बात करी तो यहाँ पे उसके रिज्यूमे में वर्क एक्स भी आएगा, राइट, डिग्री भी आएगी। रेगुलर वाले से सिर्फ डिग्री आएगी, पर यहाँ पे उसके बाद वर्क एक्स भी आएगा क्योंकि वो काम भी कर रहा है। करेक्ट, तो ये फायदा मिलता है ऑनलाइन वाले बच्चे को। राइट। एंड जब आप एंगेजमेंट की बात करें, टॉकिंग अबाउट द वे द कोर्स इज बीइंग टॉट ऑनलाइन एंड हाउ टू एंगेज द ऑडियंस ताकि रिटेंशन रेट बढ़े, या व्हाट डिड यू मीन बाय एंगेजमेंट? ड्रॉप आउट रोकने के लिए ना ऑनलाइन में, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी कहीं और है, हाँ, फैकल्टी कहीं और है और स्टूडेंट भी कहीं और है, दोनों दूर दूर है, सब लोग दूर दूर है। हाँ। तो अब एंगेजमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए बहुत सारे कंपटीशन कराए जाते हैं, वेबिनार्स कराए जाते हैं टाइम टू टाइम बच्चे को एंगेज रखने के लिए। राइट, यूनिवर्सिटी कैंपस बुलाया जाता है, कोई गेम्स कोई टूर्नामेंट होता है तो कोई चैंपियनशिप्स होती है तो बुलाया जाता है, राइट, अलग अलग प्लेसमेंट के लिए बुलाया जाता है स्टूडेंट को। तो ये एंगेजमेंट अब बहुत जरूरी है और जो यूनिवर्सिटीज कर भी रही है इनको एंगेज रखने के लिए, कि इसको ऐसा ना लगे कि आई एम बीइंग वेरी आइसोलेटेड। देखिए ऑनलाइन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अगर आज कॉलेज जाना बंद कर दूं तो मेरे सबसे पहले मेरे घर वाले मुझसे पूछेंगे कॉलेज नहीं गया, करेक्ट, मेरे दोस्त यार पूछेंगे कॉलेज नहीं गया आज। ऑनलाइन वाले से कोई कुछ नहीं पूछता कि आज कॉलेज जाना था कॉलेज नहीं गया, तो वो बड़ा आइसोलेटेड है। तो बहुत जरूरी है उस लर्नर के लिए कि वो एंगेजमेंट रहे उसके पास में। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। एंड थैंक यू ऑब्वियसली फॉर शेयरिंग दैट एंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। विद दैट मुझे आपसे ये भी पूछना है कि जब आप इस तरीके के मॉडल पे वर्क कर रहे हो, ऑब्वियसली it is a platform, it is a place where people can compare different universities, different courses, choose कि उनके लिए बेस्ट फिट क्या है। सो टेक ड्रिवन है ऑब्वियसली, पर मेरे को जानना है कि ये डिसीजन एज एन एंटरप्रेन्योर या यू एंड योर को-फाउंडर्स, डिड यू डिसाइड दिस विद एन इंटेंट कि बिजनेस को एक पर्टिकुलर रूट में ही स्केल करना है? बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर आई वांट टू नो हाउ डज वन डिसाइड एंड चूज कि डू यू वांट टू बूटस्ट्रैप द बिजनेस, या आपको फंड्स रेज करने चाहिए, वीसीज के पास जाना चाहिए या नहीं? एंड स्पेसिफिकली कॉलेज विद्या के लिए हाउ डिड यू टेक दिस कॉल? फंड्स की दिक्कत देयर स्टार्टिंग में हमें आई थी और आई एम श्योर कि हर किसी को तो नहीं बोलूंगा पर ज्यादातर ऑर्डर आती है, बिजनेस ओनर्स को आती है ये प्रॉब्लम। तो क्योंकि एक कंपनी 10 साल पहले बना के सेल की थी लाइब्रेरीज के अंदर ही और कुछ मिला नहीं था, तो इस बार एक चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि इसको बूटस्ट्रैप एक लेवल तक लेके जाना है। अब उसके लिए चाहे आपका घर बिक जाए, आपकी गाड़ी बिक जाए, आपके ज्वेलरी बिक जाए, घर की सब कुछ बिक जाए, पर इस बार बूटस्ट्रैप बना के लेके जाना है। तो ऐसा प्लान में नहीं है कि फंडिंग नहीं रेज करनी है यस, पर एक लेवल पे जाके करनी है। अच्छा, गॉट इट। तो ये चैलेंज था कि आप इसको बूटस्ट्रैप चलाना है और
मतलब विद गॉड्स ग्रेस ऐसा नहीं हुआ कि हाँ पैंडेमिक में एक बार हुआ था विच हैपेंड विद एवरीवन कि आपके बैंक अकाउंट खाली हो गए थे, सैलरी देने को नहीं थी, पर पैंडेमिक के अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ कि वी हैड अ स्ट्रगल टू पे आवर सैलरीज, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वी मतलब रही भगवान की ये कृपा रही हमारे पे कि हम लोग बूटस्ट्रैप चलते रहे और 5.5 years अभी तक it is completely bootstrapped. Got it. And what has that taught you about running an edtech company which is completely bootstrapped in the online space? Like, मुझे ये जानना है कि what has been your biggest learning, that why were you able to do so? Sustain करना possible नहीं, क्यों? लर्निंग आती है लास्ट वाले फेज से जहाँ पे हमने वो कंपनी को बेचा था और कुछ भी पाया नहीं था। तो बहुत सारे डिसीजंस हमारे खराब थे केपेक्स को लेके, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके, कैपिटल को मतलब फाइनेंस मिसमैनेजमेंट को लेके। तो अच्छा क्या पता एंटरप्रेन्योर्स कई ऐसे ही सीखते हो कि फंडिंग मिलके कैसे खराब कर दिया जाता है सबको और फिर कंपनी सेल बेच दिया जाता है। तो वहां से हमें बहुत सारे डिसीजन मिले कि फंड्स को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बिजनेस के लिए फंड्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और वो बिजनेस में नहीं करेगा और तो कोई करेगा नहीं। तो फंड्स के सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसको बूटस्ट्रैप वो चलती रहे। एंड जब हम बात करते हैं अबाउट अभी करंटली कॉलेज विद्या, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम द पोर्टल एंड एवरीथिंग दैट यू आर हेल्पिंग सॉल्व इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज, कोई स्पेसिफिक आई डोंट नो कोई इनिशिएटिव है या एनी इम्पैक्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट या समथिंग स्पेसिफिक जो आप शेयर करना चाहोगे विद द ऑडियंस दैट यू हैव रिसेंटली वर्कड ऑन, और anything that you guys are working on even from a future perspective ki this is what the vision of College Vidya is going forward, या कुछ नई चीजें that you guys are working on? There are recently we have started this campaign where we subsidize our learner. Okay. And that subsidy is purely money which is credited into their bank account. अच्छा. आज भी हम बोलते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल है, पर फिर भी यार वो बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है जो बहुत छोटे गांव से आते हैं, बहुत छोटी लोकेशन से आते हैं। तो हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि if you can fund us 1,000 rupees, if you can fund us 2,000 rupees, if you can fund us 2,500 rupees, ऐसे रिक्वेस्ट आती थी। और हम लोग फिर सोचते थे यार कि बस ये 2,000 रुपए के लिए ये पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो वी स्टार्टेड दिस कैंपेन व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेयर वी provide subsidy to every learner who comes to us for opting online education. मतलब it's a kind of a incentive to the learner जो नहीं कर रहा था, जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी, आज वो आके हमारी GER में हमारा फायदा कर रहा है और अपना भी फायदा कर रहा है। तो just to make everyone happy, government will be happy when GER ratio ऊपर जाएगा, everyone will be happy, learner को भी थोड़ा सा मदद मिल गई है और ठीक है, हमने भी किसी की मदद करी और आज हम इन लर्नर्स की मदद करके इनको ये बता रहे हैं कि when you'll be in a job, when you'll be able to pay us this amount back, तो 3 साल बाद आना, ये पैसा देना, हम किसी और की मदद करेंगे इस पैसे से। Oh, that's amazing. What a lovely way. I think आप अपना खुद ही इकोसिस्टम एक बिल्ड कर रहे हो, wherein I think it's a very great way to also kind of motivate somebody, right? कि today if we are able to help you, कल जाके आपके ही through your money that you will give back किसी और की education में और help हो सकती है, and I think which is a great way to promote education and build more skill talent also in the country. With that, Rohit, want to understand a little bit about your, I would say, viewpoint on entrepreneurship in general. We have this wave, right, and this culture, startup culture, जो इतना thrive हो रहा है in the country today. It's an aspiration for people कि मुझे भी entrepreneur बनना है, इंडिया में, भारत में रह के भारत के लिए कुछ build करना है, right? In India, for India. What is your viewpoint on some, I would say, आपके हिसाब से what are the top 3 things that somebody should have as qualities, character traits, personality traits? I'm saying technical skills की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ताकि आप एक्चुअल में कुछ बिल्ड कर सको फ्रॉम स्क्रैच। कितना बड़ा हो, आप बूटस्ट्रैप करोगे, फंड रेज करोगे, क्या बनाओगे, किस इंडस्ट्री में बनाओगे, नहीं, बट अगर जो ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं ऑडियंस, दे आर ऑल students and working professionals who someday aspire to build something of their own as well. So उनके लिए what would you say are the top 3 traits or characteristics that they should have ताकि they can build something of their own? There is stick to the idea. जो भी सोचा है, stick to the idea, उससे फोकस इधर उधर मत करना। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आइडिया आया है, मैं तो ये कहता हूँ कि 10 साल तो मत छोड़ना उसको, 10 साल तो लगे रहना चाहिए, और 10 साल बाद ही पता लगेगा कि वो खराब है या ठीक हुआ।
अच्छा, मतलब 10 साल तो लेके 10 साल तो लेके चलो, 10 साल तो लगाने पड़ेंगे, चाहे वो आप 40s में स्टार्ट करोगे, 50s में स्टार्ट करोगे, 35 में या 60s में, कभी भी आइडिया है तो 10 साल तक तो उसको मत छोड़ना, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन पे लेके जाना। ठीक है। टेक इन्वॉल्वमेंट आज बहुत जरूरी है, कोई भी आइडिया हो। टेक्नोलॉजी की मतलब टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, कोई भी आइडिया आप सोच रहे हो, करने की चाह रहे हो। और तीसरा मैं बोलता हूँ कि अपने विजन को ऐसा रखना कि लोग पागल बोले आपको कि लोग बोलेंगे यार ये क्या सोच रहा है, ये पता नहीं पागल है ये। तो अपने विजन को एकदम क्रेजी विजन रखना अपना कि क्या बनाना है इंडिया के लिए, और मतलब कोई बिलीव ना कर पाए कि आप ऐसा बनाओगे। That's how your thought should be. Aim for the sky. Obviously. Great. That's some solid advice. With that, obviously, before we move to the rapid fire round, which is a small fun segment जो मैं end में रखती हूँ, one last question for you, Rohit. So, how does someone tackle that problem and still, you know, obviously आपको उस पे ध्यान देना है, but how do you not make it your entire life and just one part of it? जरा मैं इसको इसी तरह आंसर करूंगा कि ना ये फैमिली से आता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन दी फैमिली, मतलब कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरे फादर ने कभी भी हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना नहीं किया। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गए, तो फादर ने कहा कि ठीक है, इट वाज अ लर्निंग एक्सपेंडिचर फॉर यू। वो एक लर्निंग थी, वो लर्निंग थी। तो ये फैमिली से आता है। मुझे मतलब देखिए, ये बच्चे होते हैं, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, हम उनको अभी आज एडवाइस नहीं दे सकते कि यार नहीं, मत दिल से लो, कुछ नहीं हुआ, जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत चलती रहती है लाइफ में। पर ना ये फैमिली से आता है, ये ना मतलब 3 साल के 4 साल के बच्चे से स्टार्ट होता है। फेलियर पे आप उसको लताड़ दो बिल्कुल, वो फिर डरने लग जाएगा। तो वो डर निकालना है वो फेलियर का, कि कोई दिक्कत नहीं है, फेल हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ट्राई किया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मतलब हमने भी बहुत फेलियर किया। मैंने बताया, मैं फादर का घर मॉर्गेज कर दिया, उनका बीआरएस का फंड सारा कंपनी में लगा दिया। फादर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लर्निंग थी तुम्हारी, हो गई कोई दिक्कत नहीं। तो ये ना फैमिली से लाना पड़ेगा, फैमिली से ही आएगा, क्योंकि ये अभी बच्चा है यार, ये अभी बहुत छोटा है, अभी इसकी उम्र नहीं है, इसका दिल टूट जाता है तो ये सोचता है मैं चले जाऊं, मतलब इसके 1 मार्क्स कम आ जाते हैं तो इसका मन करता है कि यार ये क्या ही लॉस हो गया मेरा यार। जॉब से अगर रिजेक्शन आ गया तो सोचता है यार कि अब मेरी दुनिया खत्म हो गई, मेरी तो जॉब लगेगी। तो ये ना ये अब पीछे से आएगा, ये आज लाना मुश्किल है। तो ये स्टार्टिंग से पेरेंट्स से आएगा। नहीं, वेरी राइटली सेड एंड आई एग्री, बिकॉज आई थिंक जिस भाई वो एनवायरनमेंट, जो आपके वैल्यूज हैं, जो आपने देखा, जिस तरीके की इनकरेजमेंट या जो ब्रेन में आपके फीड किया जाता है इन योर अर्ली इयर्स, वही फिर ट्रांसलेट होता है और निकलता है। ट्रू। नहीं, बट आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन रोहित, बट मैं एक छोटा सा हमारा जो रैपिड फायर सेगमेंट है, आफ्टर दैट वी विल लेट यू गो। It'll be very fun, spontaneous. आपके दिमाग में जो भी फर्स्ट थॉट या वर्ड आती है, you can just answer using that. So, can we start with the rapid fire? Okay, great. Okay, second thing I want to know is कि if you are given a chance to have a round table dinner conversation with any 3 people, living or dead, who would you invite and why? I would invite Mahendra Singh Dhoni. Okay. Amitabh Bachchan. Oh, wow. Mahendra Singh Dhoni, Amitabh Bachchan. And Swami Vivekananda. What a combination. Swami Vivekananda. Okay. मतलब क्योंकि एजुकेशन में है तो स्वामी विवेकानंद से वो एजुकेशन आ जाएगा। स्ट्रगल समझ लेंगे अमिताभ बच्चन से, और टीम मैनेजमेंट समझ लेंगे धोनी, कैप्टन फूड। यस, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके, नेक्स्ट आई वांट टू नो रोहित दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आपके हिसाब से राइट नाउ जो हर किसी को मास्टर करनी चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन और व्हाट दे गोना डू इन देयर करियर? ह्यूमन मैनेजमेंट। वो फैमिली घर में भी होता है, वो ऑफिस में भी होता है, वो हर जगह होता है। ह्यूमन मैनेजमेंट, हाउ यू बिहेव विद पीपल, मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? पीपल मैनेजमेंट, पीपल स्किल्स। तो वही मैनेजमेंट हमें घर में भी करना पड़ता है, वो घर पे भी जरूरी है, ऑफिस में भी जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। गॉट इट, ग्रेट। ओके, इफ यू गो बैक टू बिकमिंग अ स्टूडेंट अगेन, राइट, एंड अगर आपके पास चॉइस होती है बिटवीन एन एमबीए और अ मास्टर्स डिग्री, इफ यू हैड टू डू इट, आप कौन सी चूज करते हो और क्यों? फॉर अ हायर एजुकेशन, क्योंकि बीए तो आपने कर ली थी, ऑल्दो आपको इंजीनियरिंग करनी थी, आप एमबीए करते हैं मास्टर्स? मैं एमबीए करता हूं। ओके, व्हाई सो? उस समय ऐसा मतलब कि मैनेजमेंट स्किल्स अगर आएगी आप में तो वो एमबीए करके आएगी, तो इसलिए एमबीए सोचा था तब भी और आज भी। ओके, great. One last question for the rapid fire round, Rohit.
What is that one learning in general that you would like to give to everybody who's viewing this podcast, which has just helped you in life to stay consistent, motivated, and do whatever you're being able to do today? One learning that has stuck by you. दो चीजें हैं. कई बार मुझे ये बताया जाता है कि डिसीजन जल्दी लेना चाहिए, बट आई एडवाइस कि टेक योर टाइम, एनालाइज द सिचुएशन, बी काम एंड डिले योर डिसीजंस. डिले योर डिसीजंस, नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, but you have to analyze the situation, looking at a problem from 360 degree view. There's no hurry, कोई बेनिफिट नहीं मिलता एकदम जवाब डिसीजन लेने पे. तो डिले योर डिसीजन, सारा कुछ एनालाइज करने के बाद ही डिसीजन लो. बहुत जल्दी नहीं है. कोई अच्छा कोई बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा नहीं हो जाता इमीडिएट डिसीजन लेने से. तो एनालाइज करने की बहुत जरूरी है और आराम से लो डिसीजन. गॉट इट. दूसरी भी चीज आप कुछ बोल रहे थे, दो चीजें बोल रहे थे. डिले योर डिसीजन. हाँ, मतलब अपने डिसीजन को डिले करना है आपको. हाँ, एकदम डिसीजन एकदम नहीं लेना आपको. कुछ ट्रेन नहीं छूट रही आपकी कि अभी लेना डिसीजन. तो बिजनेस में इनफैक्ट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो लाइफ में ना, तो आराम से कामली उसको देख के समझ के फिर उसको सॉल्व करना. गॉट इट. जल्दीबाजी. बहुत साउंड एडवाइस है ये, तो मैं पहली बार सुन रही हूँ. जनरली सब बोलते हैं शुड बी अ क्विक डिसीजन मेकर, इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए, क्लैरिटी. आई थिंक क्लैरिटी ठीक है, बट जैसे आपने बोला दुनिया भाग नहीं रही है, देयर इज नो ट्रेन दैट यू आर मिसिंग इन लाइफ. यू शुड think, analyze, and then make a sound decision. Great. So with that, I think it's been a great conversation, Rohit. आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, so much about your family, what you guys are doing at college Vidya पता चला, and I hope that जितने भी लोग इस podcast को till the end you're tuned and you're listening to it. I hope you go back and take a lot of learnings from Rohit's journey and actually apply them in your life, because just listening to the podcast won't help, but applying it in your life will help you. And I hope you had a great time, Rohit. Thank you, Durga. Thank you so much for being on the podcast. That's it for today's episode, and I will see you in the next one. Don't forget to like, share, and subscribe to the Dhairya Decodes channel. Thank you.